بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ اس میں 6 نفل ادا کیا کرتے تھے. 2 نفل جو ہے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل ان رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. 2 رکعت اس نیت کے ساتھ یا اللہ ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما. اور پھر 2 رکعت ادا کرتے یا اللہ مجھے بلاؤں اور وباؤں سے میری حفاظت فرما. اور پھر تیسری بار 2 رکعتیں ادا کرتے یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. اور یہ 6 رکعت ادا کرتے تھے. اور شعبان المعظم کا روزہ یہ بڑا فضیلت والا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو, دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ اسے عافیت دے دوں؟ اور ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے. تو لہٰذا بڑی قیمتی رات ہے, اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. 16 سال سے صدیوں سے معمول ہے کہ اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس رات میں عبادت کی جاتی ہے, اس رات میں صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. اور شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بہت پرانے بزرگ ہیں, سینکڑوں سال پہلے, انہوں نے جو روایتیں لکھی ہیں یہ عالم برزخ کے متعلق بڑی بہترین کتاب ہے. اگر یہاں جو تشریف فرما ہیں حضرات وہ پڑھنا چاہیں کہ مرنے سے لے کر قیامت تک کیا ہوتا ہے, یہ ہے عالم برزخ. مختلف عالم ہیں. ایک عالم ارواح ہے جو آج دنیا میں نہیں آئے, وہ اس وقت کہاں ہے؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح کے بعد روح کہاں آتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں. یہ دوسرا عالم ہے. تیسرا عالم دنیا ہے, بندہ پھر دنیا میں آ جاتا ہے. اور جب دنیا سے انتقال ہوتا ہے پھر کہاں جاتا ہے؟ جو آج ہمارے دادا جی پر دادا جی جن لوگوں کو فوت ہوئے, جو کل فوت ہوئے, یا 100 سال ہو گئے یا 1000 سال ہو گئے, وہ کہاں ہیں؟ وہ عالم برزخ میں ہیں. مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کا جو ایریا ہے, جو پیریڈ ہے, اسے کہتے ہیں عالم برزخ. عالم برزخ کے بعد پھر یوم قیامت, آخرت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے, اور پھر وہ نو ختم ہونے والی زندگی وہاں ہے. اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا, موت کو ذبح کر دیا جائے گا, پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. تو لہٰذا عالم برزخ کے مطابق بڑی بہترین کتاب ایک ہے شرح الصدور. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. اگر اویئرنیس حاصل کرنا چاہے کہ مرنے سے لے کر قیامت تک, بہرحال شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چند راتیں سال میں ایسی ہیں کہ مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں, اپنے گھروں پر آتی ہیں اور ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں. رجب کی پہلی رات بھی ہے, شب جمعہ بھی ہے, عید کی رات بھی ہے, اور شب برات بھی ہے. اب یہ روایت میں ہے, حدیث پاک میں شرح الصدور میں لکھا ہے کہ روحیں اپنے گھر پر آتی ہیں, دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں, اور اپنے جو پیچھے چھوڑ گئے ورثاء, ان سے ایصال ثواب کا تقاضا بھی کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ ایصال ثواب کرو. تو لہٰذا آج جو ہم جمع ہیں, ہماری والدہ کہاں ہیں, ہمارے والد کہاں ہیں, ہمارے دادا کہاں ہیں, ہماری دادی کہاں ہیں, ہمارے بڑے بھائی کہاں ہیں جو دنیا سے چلے گئے. دیکھیں وہ ہم سے امید لگائے ہیں, اور جو فوت ہو گئے ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. اگر ایصال ثواب کیا جائے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نور کے تھالوں میں سجا کر ان کو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تمہارے لواحقین نے دیکھو تمہارے لیے تحفہ بھیجا, گفٹ بھیجا ہے. اور اگر ان کو تحفہ نہیں ملتا تو مردے غمگین ہو جاتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب ساتھ والے برابر کی قبر والے وہ ایصال ثواب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیکیاں کی جاتی ہیں, اچھے کام کیے جاتے ہیں, تو مرنے والوں کی چہروں کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک شخص ہے, اس کے والد انتقال کر گئے, والدہ انتقال کر گئی, وہ نماز پڑھتا ہے, وہ نیک کام کرتا ہے, اس کا کریکٹر بڑا اچھا ہے, دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا, سچ بولتا ہے, وہ برائی سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے, اور کریکٹر وائز بہت بہترین ہے,
اچھے کام کر کے وہ سال ثواب کرتا ہے اپنی والدہ کو, اپنے والد کو, تو مرنے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے والوں کی چہروں کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کر کے اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو. گناہ کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں, ٹوائس اے ویک, پیر کو اور جمعرات. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں, اس لیے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. آج برٹش جو سائیکالوجسٹ ہیں یا نیوٹریشنسٹ ہیں یا ماہر غذائیات ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایکویشن جو ہے وہ 5-2 کی بنانی چاہیے, یعنی 5 دن کھائے بندہ 2 دن نہ کھائے, اس لیے کہ صحت مند رہے گا, کولیسٹرول سے بچے گا, یورک ایسڈ سے بچے گا, وہ کینسر سے بچے گا, اس کی باڈی بہترین کام کرے گی. آج جو ماہر غذائیات ہیں وہ اس ایکویشن پر ہیں کہ 5-2, اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا. 5 دن کھاتے ہیں, 2 دن روزہ رکھتے ہیں, کر کے دکھایا. کیوں؟ اس لیے میرے نبی تو نیت یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اسی طرح ہفتے میں 1 دن اعمال بندے کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتی نے یہ کیا ہے. اور جمعہ کے دن والدین کی خدمت میں اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آج ہمارے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, نہیں پتا ان کو, دنیا میں ہے نا, زندہ ہیں, لیکن جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو والدین کو جمعہ کے دن اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بچوں نے یہ کیا ہے. اب دیکھیے, اگر بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, لوز کریکٹر ہوگا, لوز ٹاک کرے گا, پوری صحبت میں بیٹھے گا, الٹے کام کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہفتے میں 2 بار اعمال پیش ہوں گے. پھر نبی کی بارگاہ میں کیا یہ اپنے نبی کو تکلیف دے گا؟ یعنی صرف اس تصور کو ایک بار آنکھوں میں جما لیں, اس تصور کو کر لیں کہ میرے نبی میرے لیے روئے تھے, میرے نبی میرے لیے روئے تھے. کہاں؟ جب پیدا ہوئے. کہاں؟ غاروں میں. کہاں؟ معراج پر. اللہ کی بارگاہ میں سوال کیے, سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. اب میں یہ تصور کروں کہ میرے نبی میرے لیے روئے اور میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, میرا رویہ کیا ہے, میرا بیہیویئر کیا ہے, میرا نبی علیہ السلام کی سنتوں سے تعلق اور رشتہ کیا ہے, میرا دین سے رشتہ کیا ہے. لہٰذا بہترین ہے ہمارے لیے اپنے آپ کو ریپینٹ کرنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے شب براءت ہے, اور یہ توبہ کا مہینہ ہے, آپاشی کا مہینہ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام حاضر ہوا. اس نے کہا حضور میرے پاس مال کافی ہے لیکن اولاد نہیں ہے, مگر اولاد سے محروم ہوں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو, کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. اس شخص نے استغفار پڑھنی شروع کی, یہاں تک کہ روزانہ 700 دفعہ پڑھنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. جب یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا جی آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے بتایا. تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو امام حسن نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں پڑھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میں قرآن میں ہے کہ تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا. رب تعالیٰ جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا. اور حضرت نوح کا قول نہیں سنا, مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا.
यानी रिस्क की कसरत और हुसूल औलाद के लिए इस्तिगफार पढ़ना ये कुरानी अमल है, ये कुरान में फरमाया गया। अब सुनिए, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, उसने बारिश की किल्लत की शिकायत की, बारिश नहीं हो रही। आपने इरशाद फरमाया इस्तिगफार पढ़ो। फिर दूसरा शख्स आया, उसने कहा जी तंग दस्ती है, आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ो, हाथ तंग है, माल कम है। तीसरा शख्स आया, उसने कहा जी नस्ल कम है, औलाद नहीं है, आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ो। चौथा शख्स आया, उसने कहा जी जमीन की पैदावार कम है, आपने इरशाद फरमाया इस्तिगफार पढ़ो। अब एक बंदा पास खड़ा था, वो कहने लगा कि जी जो बंदा भी आ रहा है वो आप उसको कह रहे इस्तिगफार पढ़ो, इस्तिगफार पढ़ो, एक ही अमल बता रहे हैं, वजह क्या है? आपने इरशाद फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान पढ़ो। ये देखो कुरान में लिखा है, क्या लिखा है? मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ फरमाने वाला है, तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा, माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, किससे? अपनी कौम से। सुनिए, ये तफसीर सिरातुल जिनान में ये है कि जब कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत कबूल न की तो अल्लाह पाक ने उनके कुफर के सबब 3 साल तक बारिश मौकूफ कर दी। 3 साल बारिश नहीं हुई और शदीद कहद हो गया। फिर मजीद की अजाब आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औरतों को बांझ कर दिया, औलाद का सिलसिला खत्म हो गया। अब बहुत परेशान हो गए लोग। अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या फरमाया? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वादा किया, उनसे वादा किया कि अगर तुम तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची इस्तिगफार करो, तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो, अपनी उल्टी बातों से तौबा कर लो, तो अल्लाह ताला तुम पर बारिश भेजेगा, उनकी जमीनों को सरसों से शादाब कर देगा, ताज़ा जिंदगी अता फरमाएगा और कुव्वत औलाद अता फरमाएगा। कि जो बंदा तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराइयों को भलाइयों से बदल देता है। तो लिहाजा रिपेंट करने के लिए, अपने आप को तब्दील करने के लिए, इंसान है, खताएं होती हैं, कोताहियां होती हैं, करैक्टर में बुरी बातें आई जाती बंदे की, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह इन्हें अजाब करने वाला नहीं। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह इन्हें अजाब करने वाला नहीं जब तक वो बख्शिश मांग रहे हैं। जब तक वो बख्शिश मांगते रहेंगे ना, माफी मांगते रहेंगे, अल्लाह अजाब करने वाला नहीं होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? वो मालिक है, वो खालिक है, हम अपने रब की बारगाह में तौबा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी तौबा के लक़ब से भी मुलक़ब हैं, मशहूर हैं नबी तौबा। यानी आपकी वजह से जितने लोगों को तौबा नसीब हुई, पहले किसी नबी की वजह से नसीब नहीं हुई और दूसरी उम्मतों को तौबा की तौफीक मिली। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह लोगों की तौबा कबूल फरमाएगा। आपकी उम्मत बहुत तौबा करने वाली है, सारी उम्मतों में सबसे ज्यादा तौबा करने वाली है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नबी तौबा भी हैं और फरमाया गया तौबा की वजह से अल्लाह ताला दिलों का जंग भी दूर कर देता है। तो कल टुमारो यानी फ्राइडे इवनिंग से मगरिब से शब बारात शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात शुरू हो जाएगी और इसमें कहा यह जाता है, उलमा लिखते हैं कि ये वो है जिसमें नामे तब्दील होते हैं, नामा या अमाल तब्दील होते हैं, फ्रेश बंदे का साल फिर शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में फरिश्तों को बता देता है कौन पैदा किया जाएगा, कौन रिस्क दिया जाएगा, कौन बीमार हो जाएगा। तकदीरों के फैसले इस रात में होते हैं और इसमें जो दुआ पढ़नी होती है, अल्लाहुम्मा बद्दिल सुआ तक़दीरिना बिल खैर, या अल्लाह मेरी पूरी तकदीर को अच्छी तकदीर से बदल दे। देखें, इंसान कोशिश कर सकता है, तकदीर नहीं बना सकता।
हम कोशिश कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते। अल्लाह ताला चाहे जो चाहे, वो मालिक है, वो खालिक है, वही तकदीर बदलने वाला है, वही शिफा देने वाला है, वही औलाद देने वाला है। अगर बाजू का लोग कहते हैं, बाजू का लोग दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें औलाद दे दे, तो मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब जो दावत इस्लामी के अमीर हैं, अमीर अहले सुन्नत हैं, वो फरमाते हैं दुआ मांगे ना, जब औलाद मांगे तो ये कहना चाहिए, या अल्लाह नेक औलाद आफियत सलामती के साथ अता फरमा। दो चीजें साथ मांगो, एक तो औलाद नेक मांगो, मांग रहे हो ना औलाद तो नेक मांगो, और दूसरा किससे मांगो, आफियत के साथ मांगो। हो सकता है औलाद पैदा हो तो माजूर हो सकता है औलाद पैदा हो तो ज़ौजा को प्रॉब्लम आ जाए, वो फोत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आफियत मांगो, या अल्लाह औलाद दे दे सलामती के साथ, और औलाद मांग ही रहे हैं तो या अल्लाह नेक औलाद दे दे। तो अल्लाह से मांगे, ये रात मांगने की है, तौबा करने की है, नवाफिल पढ़ने की है अल्लाह की बारगाह में। और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मैं बंदे को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो बख्शिश मांगता रहता। तो देखिए, हमें अपने मौका बड़ा अच्छा है। गुफ्तगू तो आज बहुत कुछ हो सकती थी, आज खौफ खुदा पे बात हो सकती थी, इसके मुस्तफ़ा पे बात हो सकती थी, कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात हो सकती थी, क्वालिटी एनहांसमेंट पे बात हो सकती थी, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे बात, प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने की बात हो सकती थी। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट साहब ने ये समझा कि मौका अच्छा है कि हम इस मौके से फायदा उठाते, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान हुआ है, एक बम्पर ऑफर बंदे को की जाती है, जैसे दुनिया में हम कहते हैं एक ऑफर आती है कि भाई इस दिन जो परचेजिंग करेगा उसको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, इस दिन जो परचेजिंग करेगा उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये गिफ्ट साथ एडिशनल होगा। तो लिहाजा ये ऑफर है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को बख्श देता है। मगर चंद एक लोग ऐसे हैं जिनको इस रात भी बख्शा नहीं जाता, चंद एक लोग ऐसे हैं जिनको इस रात भी बख्शा नहीं जाता। अब सुनिए कि इस रात में जिन लोगों की मग़फ़िरत नहीं की जाती, पहली बात तो यह है कि जो लोग आतिशबाजी करते हैं, आतिशबाजी तो ये क्या कहते हैं, फायरवर्क्स, तो ये आतिशबाजी ये मुसलमानों की इजाद नहीं है। फायरवर्क्स जो है ये आतिशबाजी शब बरात से इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तज़िये माल कहा गया अपने पैसे को आग लगाना, और ये इजाद किन की है, ये नमरूदियों की इजाद है। जब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंका गया तो नमरूदी जो थे उस आग को भड़काने के लिए आग के अनार बना बना कर उसमें फेंकते थे। तो इसलिए उलमा ने मना किया कि फायरवर्क्स जो है ये आतिशबाजी, इसका इस इस्लामी रस्म व रवाज से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसमें क्या करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, सदका खैरात। देखें, अगर कोई अपने वालिद की ज़ियारत करता है या वालिदा की ज़ियारत करता है मोहब्बत के साथ, एक मकबूल हज का सवाब, पहली इबादत तो घर में मौजूद है, हज का सवाब, अम्मी अब्बू की ज़ियारत करें, ये इबादत। मियाँ बीवी मिलकर खाना खाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस ख़ानदान पर नज़र रहमत फरमाता है। नंबर 3, बच्चे। हदीस पाक में आता है कि जन्नत में एक शहर है, उसका नाम दारुल फराह है, उसमें वो लोग दाखिल किए जाएंगे जो बच्चों को खुश रखा करते थे। 3 इबादत में अर्ज कर रहा हूँ, आगे चलें। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मजमे में तशरीफ फरमा थे, और मजमे में तशरीफ फरमा होकर आपने फरमाया, आप में से जो यहाँ ऐसा शख्स बैठा है जो रिश्तेदारों से रिश्ता काटता है, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है, रिश्तेदारों को छोड़ देता है, वो उठ जाए। हमने दुआ मांगनी है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे मजमे की, पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता किसकी, जिसमें एक भी रिश्तेदारों को छोड़ने वाला मौजूद हो, रिश्ता काटने वाला मौजूद हो। आज लोग कहते हैं जी तुसी साढ़े वास्ते मर गए तो असीं तुहाडे वास्ते मर गए। नो नो नो, कोई तरीका नहीं है। इन इस्लाम ये आग जो है, आग करते हैं ना, आग कर दिया जायदाद मनकूलाना से, ये इस्लाम में यह है कि बाप ने आग कर दिया, बाप फौत हो जाए उसको जायदाद में पूरा हिस्सा दिया जाए, कोई आग नहीं होगा। इन इस्लाम मरदा नहीं है बंदा, ओ भाई बेटा है आपका, कैसे हो सकता है कि आप मेरा बेटा ही नहीं है, नो तो कैसे हो सकता है। और हदीस पाक में कोई अपने वालिद की जगह किसी और का नाम लिख दे, इसको तो लानत करार दिया, लानती करार दिया गया, बहुत बुरा करार दिया गया कि अपने वालिद की जगह किसी और को बताए। इसमें तो और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लिहाजा महरूम लोग कौन होते हैं, शब बराअत वाले दिन जिनकी मग़फ़िरत। अभी मैं इबादत का कह रहा था, चले
रिश्तेदारों के साथ कोई गिफ्ट भेज दे, कोई खाना पका दे, कोई हलवा पका दे, कोई फिरनी, कोई मिठाई, कोई चीज जिससे जो नाराज है थोड़े से वो राजी हो जाए कि यार चलो उन्होंने याद तो किया। हमसाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक नेक हमसाए की वजह से 100 घरों से बलाए दूर फरमा देता है। इसी तरह सदका खैरात है, फिर तौबा है, फिर नवाफिल है, फिर इबादत है, अच्छी कामों की नीयतें हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 6 आदमियों की बख्शिश इस रात भी नहीं होगी। 6 अफराद ऐसे हैं जिनकी बख्शिश इस रात भी नहीं होगी। नंबर 1, शराब का आदी, जो शराब का आदी होगा शब्बे बराअत में भी उसकी मगफिरत नहीं की जाएगी। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान, इसकी शब्बे बराअत में भी मगफिरत नहीं होगी। नंबर 3, जिना का आदी। नंबर 4, कता ताल्लुक करने वाला। नंबर 5, चुगलखोर। इसके अलावा एक और रिवायत में आता है कि जो किसी मुसलमान का कीना दिल में रखता होगा, दुश्मनी छुपा के दिल रखता होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस रात भी उसकी मगफिरत नहीं फरमाएगा। देखें, शब बरात में अल्लाह सारे मुसलमानों की मगफिरत फरमा देता है। चंद एक लोग स्पेसिफाई किए गए हदीस पाक में कि इनकी मगफिरत नहीं होगी। कहीं खुदा ना खास्ता हम तो नहीं इसमें, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह ना करे कोई शराब पीता है तो मुझसे तौबा करवा दे। किसी मुसलमान के दिल में छुपी हुई दुश्मनी, इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। कीना कहते हैं किसी मुसलमान के दिल में छुपी हुई दुश्मनी। मिसाल के तौर पर सास और बहू, मिसाल दूंगा मैं आपको। सास और बहू इकट्ठी रहती हैं, इकट्ठी खाती हैं, एक ही घर में रहती हैं, लेकिन बैठती भी इकट्ठी हैं, लेकिन जब इनको सेपरेट करें तो बाज़ जगह, सारे घर ऐसे नहीं है ना, सारे नहीं है, बाज़ जगह वो सास कहेगी मुझे नौकरानी बना दिया है, मैं बुढ़ापे में इतना काम करती हूँ, मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया है, बड़ी खतरनाक औरत है मेरी बहू। और बहू क्या कहेगी, ये जी कब्जा कर लिया है, मुझे काम नहीं करने देती, बेटे की यूँ करती बुराइयाँ करती एक दूसरे की। इसे कहते हैं कीना। है इकट्ठी, रहती इकट्ठी है, मगर बुराई करती, दिल में छुप जब मौका मिलता है तो वार करती है। इसी तरह से पास ये कॉर्पोरेट कल्चर जो है, ऑफिस का कल्चर, उसमें भी लेग पुलिंग होती है। लेग पुलिंग के ऑफिसर की बुराई करते हैं, अपने साहब की बुराई करते हैं, तौबा, अपने इदारे की बुराई करते हैं, जहां से खाते हैं उसी प्लेट में छेद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे कीना कहते हैं। और कीना परवर जो अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, किसी भी मुसलमान की बुराई दिल में छुपा के रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शब बराअत में भी मगफिरत नहीं फरमाएगा। हमें ये करना है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे किसी ने तकलीफ दी, परेशानी दी, वो किया, मैंने उसको माफ़ किया। फिर अपने वालिद से, अपनी वालिदा से, अपने बच्चों की अम्मी से, ज़ौजा से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से बंदा सॉरी कर ले, कुलीग से कि यार शब बारात आ रही है, दिल में कीना होता है, दिल में दुश्मनी होती है, तो अल्लाह ताला इस रात मग़फ़िरत नहीं करता, तो मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ फरमा दो। लैलतुल क़द्र, अब मैं आपको बताता हूँ, 2 मुसलमानों का झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना, इख्तलाफ हो जाना कितना ख़तरनाक है। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रात को तशरीफ ला रहे थे कि बताऊं, लैलतुल क़द्र तशरीफ ला रहे थे 27वीं के, मैं तुम्हें बताऊं कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात होती है। ये रमजान के आखिरी हिस्से की लैलतुल क़द्र कौन सी रात होती है। 2 मुसलमान झगड़ा कर रहे थे, आपस में 2 शख्स लड़ रहे थे। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं आया इसलिए था कि तुम्हें बताऊं कि शब क़द्र कौन सी है, मगर 2 ये बंदे लड़ रहे हैं, उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तायुन को रोक लिया है। मैं तुम्हें चाहता था कि बताओ कौन सी रात है, मगर अब तुम रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब बताइए, झगड़े के दीनी नुकसान और दुनियावी नुकसान। अगर 2 शख्स लड़ ना रहे होते तो आज हमें पता होता कि रात कौन सी है।
तो झगड़ा करना, फसाद करना, मुसलमानों की चुगलखोर की भी इस रात मगफिरत नहीं होगी। चुगलखोर की डेफिनेशन ये है कि दो मुसलमानों में लड़ाई करवाने के लिए एक ही बात को दूसरे तक पहुंचा देना, एक ही बात को दूसरे तक पहुंचाना। लिहाजा शब बारात आ रही है, मौका बहुत अच्छा है, और फिर आगे रमजान है, फसल काटने का महीना है। देखें, दिस इज आवर प्रोफेशनल लाइफ, ये एक प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन एक हमारी प्राइवेट लाइफ है। इस प्रोफेशनल लाइफ को अडॉप्ट किया है कि इसके जरिए से माल कमाएं, और माल कमाकर बीवी बच्चों की खिदमत करें जो इबादत है, माल कमाकर माँ बाप की खिदमत करें जो इबादत है। माल इसलिए कमाऊं कि किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, ये इबादत है। लेकिन दिस इज आवर प्राइवेट लाइफ, एक और लाइफ है जिसमें रिश्तेदार भी हैं, जिसमें हमसाए भी हैं, जिसमें दोस्त भी हैं, और अल्लाह की इबादत भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें जो हमारे सोशल मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक वाले हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन अखलाक की जो इक़दार हैं, अल्लाह उसको अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा मैंने पहले अर्ज किया, टॉपिक्स बहुत सारे थे, सोशल मैनर्स भी, एटिकेट्स भी, अदब आदाब भी, बहुत कुछ बयान हो सकता है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं नियत करता हूँ अगर आपने कंटिन्यू किया इंशाअल्लाह तो प्रेसिडेंट बार के तवस्सुस से लॉयर्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो कोर्सेज है, मोटिवेशनल कोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर कस्टमर केयर का कोर्स है। क्या मुस्कुराना सिर्फ पिज़्ज़ा वाले लिए है? क्या मुस्कुराना सिर्फ बर्गर वाले लिए है? इसलिए कि 80 रुपए का बर्गर उसने 800 का बेच रहा है? सर, एनीथिंग एल्स सर? सर प्लीज, ओ सर प्लीज नेक्स्ट विंडो सर। क्या सिर्फ बसों में जिसको सवारियां चाहिए, 800 वाली बस 2000 रुपए में सवारी लेके जानी पिंडी, वो मुस्कुराएगा? क्या सिर्फ सुपर स्टोर वाले मुस्कुराएंगे, या हम अल्लाह की रजा के लिए भी किसी के लिए मुस्कुराएंगे? आइए मेरा भाई जी, आज दुकानदार कहता है, दुकानदार कपड़े वाला, आओ बाजी जी आओ, लांगा आओ बाजी आ जाओ, जा बाजी से बोतल लेके। ये दुकानदार है, इसका एटीट्यूड और बिहेवियर है। लेकिन जब उसकी सगी बहन आती है छुट्टी वाले दिन, वो सोया होता है छुट्टी वाले दिन, वो कहता की बच्चे चुकी आएंगे रोला पा देने, सोन भी नहीं देते, छुट्टी वाले दिन ही आएंगे। अब बाजी जी गैर औरत को 100 रुपए 200 रुपए मुनाफा देगी नहीं देगी कोई पता नहीं, वो बाजी जी है। और सगी बहन आई, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हैं? तो मुझे चूंकि पर्ची आई थी तो मैं एथिक्स आखिर में ले रहा हूँ कि प्लीज एथिकली मोरली हमें बहुत ज्यादा आला इक़दार पर आना है, जो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान है। मिस कमिटमेंट करना हमारे नबी की शान नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने कोई माल खरीदा, मेरे आका अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं घर से पैसे ला के देता हूँ, आप यहाँ खड़े हो। मेरे आका अलैहि वसल्लम वही खड़े, आपने फरमाया तुम होकर आ जाओ। 3 घर जाके भूल गया, 3 दिन के बाद उसको याद आया कि मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को खड़ा किया है। मेरे आका अलैहि वसल्लम 3 दिन बाद भी वहीं खड़े थे। फरमाया मैंने तुम्हें वादा कर लिया था ना, मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरे आका अलैहि वसल्लम कमिटमेंट को पूरा करने वाले, और वादा खिलाफी, मैं एक आखिरी बात कर रहा हूँ, लास्ट बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं 5 मिनट ऊपर चला गया पर्ची की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वादा खिलाफी की, जिसने मिसकमिटमेंट वादा खिलाफी की, उस पर अल्लाह, फरिश्तों और सब लोगों की लानत है। उसका ना कोई फर्ज कबूल है ना कोई नफल कबूल है। वादा खिलाफी की इस्लाम में कमिटमेंट की क्या अहमियत है। और आज दर्जी को सूट दे दो, वो कहते जी कल दे दूंगा, अब कल पता करें, वो कहे जी बिजली नहीं आ रही थी, चलो ठीक है। परसों पूछे, वो कहे जी मेरे रिश्तेदारों में फौतगी हो गई थी। उसके बाद पूछे, वो कहेगा मशीन खराब हो गई थी। उसके बाद पूछे, वो कहता जी वो आपका कपड़ा ही नहीं मिला, पता नहीं किधर गया है, वो गुम गया, दुकान पे पड़ा। आप परसों पता कर लें। आप प्लम्बर को पूछें, उसका कोई ना कोई मर जाता है। इलेक्ट्रिशियन को पूछें, वो भी कोई ना कोई मिसकमिटमेंट करेगा। 10 काम उसने पकड़े होंगे तो आपके काम पूरा नहीं करेगा, और ये मुसलमान की शान नहीं है। तो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। जब बात कह दी तो भी इसको हमें पूरा करना चाहिए। शब बारात है, बहरहाल मैं प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जुडिशरी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने तशरीफ रखा। और शब बारात के इस बाबरकत मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सादत दी, हम अपने आप को थोड़ा सा रिव्यू करें
اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوتاہیاں خطائیں معاف فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے کر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کریکٹر وائز بھی اچھا کر دے اور ہمیں آخرت میں جنت میں داخل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ عز و جل، آج کے اس مبارک اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ آج کا اجتماع شب براءت کی برکات حاصل کرنے کے لیے تھا. آج کا اجتماع شعبان المعظم کی برکات حاصل کرنے کے لیے تھا. یا اللہ آج کا اجتماع تیری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تھا. یا اللہ آج کا اجتماع تیرے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے تھا. آج کا اجتماع یا اللہ ہمارے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے تھا، دل کی نرمی کے لیے تھا. مولا یہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری نیتیں قبول فرما لے. یا اللہ جن احباب نے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے، ان کی ٹیم نے، ان کے ممبران نے اہتمام کیا، یا اللہ ان کو برکت عطا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے مولا وہ محروم نہ جائے. اے مولا ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ عز و جل اے مالک مولا ہماری بخشش کر دے. یا اللہ ہمیں بخش دے، بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ عز و جل آج ہمارے معزز جج صاحبان تشریف لائے، مولا ان کو برکت عطا فرما، عزت عطا فرما. یا اللہ نظر بد سے بچا، آفتوں بلاؤں مصیبتوں وباؤں سے بچا، ظالموں کو ظلم، حاسدوں کے حسد، شر شیاطین سے محفوظ فرما. ہمارے جتنے ممبران بار ہیں یا اللہ ان کے پریزیڈنٹ سمیت سب کی حفاظت فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ شب برات میں تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یا اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے آزادی فرما دے.